अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तवां पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मया वेश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मतः। ये त्वक्षरं निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रं तं चिन्तयं च कुटस्थं चलमं ध्रुवम् सन्नियेम मयेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एक और पढ़ूं? हाँ 5 पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। ओके। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवभिधरा वाप्यते। हाँ जी, मोना जरा आप पढ़ो हिंदी। हाँ जी। अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? श्री भगवान बोले मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ठीक है। हाँ बहुत सुंदर पढ़ाया आपने। हाँ जी, ये हर्षा जी जरा इंग्लिश पढ़िएगा। 12th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। हाँ लंबा है थोड़ा, पढ़ती हूँ मैं। हाँ अच्छा। श्लोक 1 अर्जुन said, those ever steadfast devotees who worship you, and also those who worship the imperishable, the unmanifest, which of these are best versed in yoga? The chapter begins with Arjuna's question, whether it is better to worship God with a form or worship the imperishable, unmanifest, formless reality. The word evam, meaning thus, refers to the last 2 verses of the preceding chapter, which prepare seekers with steadfast devotion to pursue the spiritual path. Arjuna seeks clarification regarding those ever steadfast devotees who worship God, who worship the Lord. Are they better attuned to yoga or those who tune directly to the supreme reality? Yoga means the spiritual path leading to union with the Supreme Self. In short, Arjuna asks if spiritual pursuit requires an idol. To what end does form or formless worship lead? Arjuna's question reveals his lack of understanding the art of God symbolism. Symbolism plays an important role in spiritual practices. A symbol is a known idol representing the unknown ideal.
the supreme God. It helps those who cannot directly conceive God. An idol serves due to one. An idol serves one to identify with the ideal, just as a national flag helps a citizen identify with his nation. Few can develop national consciousness without the help of symbolic aids such as national flag or anthem. Similarly, the masses find it difficult to develop God consciousness without the help of an idol or symbol. The fact that Arjuna expresses his doubt on the relative superiority of form or formless worship proves his need for a manifested form for worship. He has not spiritually advanced to the stature of introverted seekers who can directly conceive the unmanifest, imperishable reality, Brahman. Verse 2. The Blessed Lord said, those ever steadfast devotees who, fixing mind on me, worship me endowed with supreme Shraddha, them do I consider best in yoga. Lord Krishna declares the steadfast devotees who worship him with Shraddha to be best in yoga. Yoga means union with the Supreme Self within. Shraddha, though translated as faith, envisages the seeker's unswerving devotion and consistent effort until he becomes one with the Lord. Krishna's declaration indicates that these devotees who worship him rank superior to those who pursue the formless reality. Me mata means my opinion. Krishna makes it clear that above declaration is his opinion and not an eternal truth. Eternal truths comprise Vedanta, the philosophical contents of the Vedas. These principles are applicable to all periods of time. They remain unchanged. Great masters imparted relevant portions of these truths, which best served particular audiences in their time and place. The knowledge given by these masters formed their opinions, which later took on the shape of different religions. Krishna admits this message to be only his opinion to distinguish it from the eternal truths. He directs his advice to Arjuna in particular and not the world in general. Verses 3rd and 4th. Those indeed who worship the imperishable, undefinable, unmanifest, omnipresent, unthinkable, unchanging, immovable, and eternal. Verse 4. Having well restrained the group of senses regarding everything equally, rejoicing in the welfare of all beings, they also reach me. In the preceding verse, Krishna declared worshipping him to be the best. Here in these two verses, he supports formless worship as well. He states that seekers whose minds are set on the unmanifest also reach him. The devotional need a form, an ideal for worship, whereas the intellectual can reach God without a form. They stretch the intellect all along the way to him. Verse 3 provides some pointers for the introverts to meditate upon Brahma, the formless reality. Akshara imperishable. Brahma is the imperishable substratum upon which this perishable world exists. All things and beings in this world perish, but the underlying reality that supports them exists forever. Anirdeshya, you cannot define, indefinable. Language can define anything with properties. The reality has no properties. Hence, language cannot define it. Avyakta, unmanifest. The terrestrial world comprises objects, emotions, and thoughts. Objects are perceived by the senses, emotions felt by the mind, thoughts conceived by the intellect. The transcendental reality cannot be perceived, felt, or conceived. It remains beyond the reach of the mind, body, and intellect. Hence, it is unmanifest.
Sarvatraga means omnipresent. Brahma pervades the waking dream and deep sleep states of consciousness. It also extends beyond these three realms. It exists everywhere. It is all pervading. Achintya, unthinkable. Thinking is confined to the objects of thought. When the pure consciousness illumines an object, you become conscious of the object. The thought of the object is formed. The pure consciousness without objects has therefore no thoughts. Therefore, it is unthinkable. Kutastha, unchanging. The body and its perceptions change. The mind and its emotions change. The intellect and thoughts change. But the Atma that enlivens the body, mind, and intellect remains ever the same. The changeless substratum upon which all changes in the world occur. Achala, immovable. Movement of an object is possible from a place where it is to a place where it is not. Therefore, for an object to move, there must be necessarily a place where it does not exist. Since Brahma is all pervading, there is no place where it does not exist. Hence, Brahma remains immovable. Dhruva, eternal. The world that exists now is different from the world that exists in the past and that which will exist in the future. The world at any time is transient, fleeting, impermanent. But Brahma supported the past world, supports the present world, and will support the future world. Brahma exists across time, past, present, and future. He is eternal. Before plunging into meditation with the help of the above pointers, the introvert seekers need to prepare themselves through physical, mental, and intellectual disciplines. These disciplines qualify them to effectively use these terms to reach the supreme reality, God. The physical discipline aims at gaining control over the senses. The senses tend to gravitate to sense objects and indulge in them. You must check their indulgence. Be a master and not a slave to the sense objects of the world. Next, your mind must remain pleased with the welfare of your fellow beings. Develop a feeling of love and affection towards one and all. And your intellect must recognize the unifying principle, the substratum of everything, the one reality that pervades the entire pluralization of the world. Perceive the unity in the diversity. Having disciplined himself thus, the introvert uses the above definitive terms to meditate upon the formless reality. Fifth, greater is the difficulty whose minds are set on the unmanifest. For the goal, the unmanifest is hard for the embodied to reach. In verse 1, Arjuna posed the question, is it better to worship God through a form or the formless reality? In the next three verses, Krishna upholds both, but indicates to Arjuna that worship is best through a form. Here again, Krishna seems to discourage Arjuna from formless worship. Those whose minds are set on the unmanifest find it difficult to reach their spiritual goal. In the verse, the word embodied indicates the category of persons who find the path of formless worship difficult. Those whose attention centers around their body. Those who are attached to and involved in the body. Extroverts preoccupied with the affairs of this world. They can hardly conceive the transcendental reality without a symbol or an idol to represent it. Hence, spiritual initiates take to worship through a form, known as Saguna Upasana. As seekers advance spiritually, they turn introvert contemplative. They then qualify to meditate upon the formless reality, known as Nirgun Upasana. Krishna emphasizes the difficulty in formless worship and leaves Arjuna to form worship. Finished. बहुत ही सुंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपके इसमें बहुत ही बहुत सुंदर अच्छा है है। हाँ नहीं नहीं, आप चाहे तो मैं इसका पेजेस भेज दूं। पेजेस नहीं नहीं आप ग्रुप में भेज दीजिएगा वैसे ग्रुप
ग्रुप में इसका प्रैक्टिस जो हम लोग करेंगे तो उसका पेजेस मैं भेज सकती हूँ। हाँ, तो नहीं, किसको रिवाइज भी करना है तो कर सकते हैं। किसी को मतलब पढ़ना होगा तो ठीक है, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। मैं ये पेजेस भेज दूंगी। वैसे तो मतलब जैसे ये जो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं इसमें, तो ये तो जैसे पूरा एसेंस जैसे समझ में आ जाता है ना। तो इसमें अपनी एक्सप्लेनेशन जो करते हो आप माइंड से, तो वो एक अलग ही बात होती है इसमें करने में। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो बोल देता है पूरा, जो जैसे अनमैनिफेस्ट को जो है हम कैसे करेंगे ना, मैनिफेस्ट हुए हुए हैं हम लोग। तो अब मतलब क्रिएटिविटी तो हमारी तभी है ना जब हम खुद उस लेवल पर खड़े होकर और इसको जो है गीता की एक्सप्लेनेशन करें जहाँ से कृष्ण बोलना चाह रहे हैं। तो वो वहाँ तक जाने में मतलब हर ही मनुष्य तो वहाँ तक गया, तो उसमें जैसे एक्सप्लेनेशन चाहे वो प्रभुपाद जी ने की या किसी और ने की, मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन कई लोगों ने की हुई है, लेकिन अपनी जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं निकलेगी तो तब तक मतलब मजा तो अपनी करने में मजा आता है ना। जैसे अपना का ही है, अपने का ही है। अपने में मजा आता है। जैसे आप अरविंदो की बोलते हैं या मदर की बोलती हैं, तो वो उनका था ना, अपना अपना क्या रियलाइजेशन है ना। तो मतलब मुझे तो उसमें ज्यादा मजा आता है कि जैसे सुन लिया पढ़ लिया, सबका बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये होता है कि अपने आप हम क्या अपने ने क्या डाइजेस्ट किया, हाँ, कि हमने डाइजेस्ट भी किया और अब उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब। हाँ, तो वो चीज जब तक हमारी अपने साथ आत्मसात नहीं होएगी तो फिर नॉलेज में मजा नहीं आता तब तक। तो इसलिए जो है ये इस वाले मतलब जैसे ग्रुप में बेसिकली अपना ही शब्दों की कीमत, मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे सही बात है, सही बात है, चाहे गलत भी बोलो चाहे सही बोलो, बात वो नहीं है, लेकिन अपनी बस ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हमें मिलता है, उसके उपरांत और कुछ नहीं है। हाँ, यही है। तो यही है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इसमें जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, अनन्य प्रेमी जन भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगकर आप सगुण रूप परमेश्वर को। एक्चुअली क्या है कि जब तक मैं हूँ, मैं सगुण रूप में हूँ, अब निराकार की उपासना मुझे करनी है। अब सगुण तो सगुण क्या है, जो शरीर लिया हुआ है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं अर्जुन की मैं सगुण रूप की जो है उसको करूं, परमात्मा को भजूं या फिर निराकार उसको ब्रह्म को भजूं। और इसमें जो बोला था ना आपने इमूवेबल ब्रह्म, तो ब्रह्मा भी ये होता है, एक तो ब्रह्मा जो मन से जो स्टार्टिंग होती है ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा बोला जाता है। और एक ब्रह्म होता है जिसमें ब्रह्म में जो तीनों तत्व समाये हुए होते हैं, शिव तत्व भी, ब्रह्म तत्व भी और विष्णु तत्व। तो तीनों ही जो जिसमें समाहित हो जाते हैं वो ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्मा जो होता है जो सृष्टि का जो रचना करने वाले जो क्रिएटर होते हैं, तो वो क्रिएटर में आता है। तो क्रिएटर में पहले ब्रह्मा की होती है उपस्थिति, फिर दूसरी विष्णु की और तीसरी शिव की होती है। तो अब इसमें जैसे अब हम सगुण रूप में किस तरीके से उसको जो है बच सकते हैं। सगुण रूप में ये है कि इसमें जब भी हम सगुण रूप में परमात्मा, जैसे अब सारे हम मूर्ति हैं, सब जितना भी टोटल जगत है वो सारा मूर्तिमान जगत है, या भूत कह दीजिए उसको। तो उसको जो भजना है तो उसमें हम कैसे परमात्मा को देखें। अब परमात्मा को देखें मतलब ये है कि हमारे को उसमें इस तरीके से उनमें आपस में व्यापार जगत में जाना है कि हमें कोई विचार ना बने। हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं ना उनके साथ में, तो वो हमारा जब विचार शून्य वाली अवस्था तब पर रहता है तो उसको भजना होती है वो स्थिति। तो अब क्या होता है, वो स्टार्टिंग ही जब मेरी निर्विचार अवस्था से स्टार्ट होएगी और बीच में मैंने एक्ट करा विष्णु वाला, और फिर जो है मेरी वो बाद में भी जो शांति वाली जो स्टेज आती है मेरी, वो शिव वाली स्टेज पूरी तरह से रहती है। तो वो मेरा व्यवहार मतलब वो सगुण भक्ति कहलाएगी। तो सगुण भक्ति ये नहीं कि आपने एक मूर्ति बना ली कृष्ण की और आप उसको भजने बैठ गए। सगुण भक्ति उसका मतलब नहीं है। आप जितना भी आप जिसके साथ में भी आपकी डीलिंग रहती है तो उसमें परमात्मा स्वरूप को देखेंगे, तो आप जो भी कुछ करेंगे तो उसमें एक तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, और गलत नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर विचार भी पैदा नहीं होगा कि वो जो है रिवर्ट बैक में आपको कुछ करे। तो इस प्रकार की जो एक्सपेक्टेशन जब हमारी नहीं पैदा होती और हम उसके लिए व्यवहार जगत में ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ में कि हम उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम वह करते हैं जो उसके लिए अच्छा हो। तो वैसा वाला जब व्यवहार होता है ना तो वो सगुण भक्ति कहलाती है, जिसमें मेरे अंदर मैं बिल्कुल भी डिजायर के बिना जब कर रही हूँ तो वो मेरी भक्ति कहलाएगी।
कि मैंने किसी भी प्राणी के लिए कुछ भी किया है, तो जब तक वो मेरा जो है पूरी तरह से विचार शून्य स्टेज मेरी नहीं आती, तो मैंने जो है सगुण भक्ति नहीं करी। तो सगुण भक्ति भी एक तरीके से निराकार वाली भक्ति में जाके मर्ज हो जाती है। मर्ज इस तरीके से हो जाती है ना कि विचार शून्य वाली अवस्था से शुरू हुई और विचार शून्य अवस्था पे ही आपका जाके एंड होता है। बीच का जो टाइम होता है वो सगुण भक्ति, मतलब जिससे भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो जो होता है इस प्रकार से सगुण भक्ति, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से बोलती हूँ। ये नहीं कि आपने मूर्ति बना ली और बाकी जैसे कोई भी आपके घर आता है जाता है या आप जिससे भी इंटरेक्शन करते हैं, तो उसमें आप उसमें परमात्मा का स्वरूप देखकर नहीं करते, बस आप एक कृष्ण की उसमें ही आप मानते हैं कि बस इसी मूर्ति में ही परमात्मा है। तो वो वाली भक्ति नहीं, जितनी भी मूर्तिमान जो जगत है उसके प्रति इस प्रकार की भक्ति को मैं ऐसा मानती हूँ कि सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति और निराकार भक्ति जो है दोनों एक ही तरीके से मतलब मर्ज हो जाती हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अत्यंत अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब वो कह रहे हैं कि मतलब मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए। अब भजन ध्यान क्या चीज़ हुई? भजन ध्यान वह कि जो भी मैं कार्य कर रही हूँ ना, जो भी मैं कार्य कर रही हूँ तो वो मेरी मन की शून्य अवस्था से आए, मन का एकाग्र। और जब मैं शून्यता हुई ना, जैसे ध्यान से भी पहले ध्यान, अब क्या है कि जैसे जब तक मैं अब पूरी मेरे मन की शांत स्टेज नहीं होएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। जब तक मैं मन की शांत वाली स्टेज पे नहीं जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सामने जो आया हुआ काम है वो सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। तो विचार शून्य अवस्था से ही जो आपका जो क्रिएटिविटी जो चालू होगी तो वो वहाँ से स्टार्ट हो गया कि जो भी कुछ कर रहे हो तो उसमें आपका कोई ना अपना पराया, ना राग द्वेष, ना भेद बुद्धि। तो जब ये तीनों प्रकार की चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं तब आपको पता चलता है, तो वो उस प्रकार का भजन ध्यान मतलब कहलाया जाता है। ध्यान से भी पहले ध्यान। अब फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको प्रॉपर एकाग्र माइंड से कर पाएंगे ना, क्योंकि आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहे कि उस समय क्या चलता है। नहीं तो विचार बुद्धि इस तरीके से चलती है ना कि ये मेरा है, ये अपना है, या इसमें मैं कुछ मैनिपुलेशन कर लूँ। ये सब चीज़ें जो है, ये सारा जो टोटल जो मेरे अंदर करते हुए में भी विचार बनते, तो एकाग्र बुद्धि भी मेरी तब होगी जब मैंने ध्यान से भी पहले ध्यान किया। तो ध्यान में पहले मैंने अपने आप को जीरो किया, फिर मैं जिस भी काम में ध्यान दे रही हूँ तो फिर वो मेरा 100% ध्यान देना होगा। तो उस प्रकार से जब करा जाता है तो वो उस समय ही हमारा योग हो जाता है, जब हम ध्यान में सबसे पहले वाला ध्यान करते हैं। ध्यान से भी पहले ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब मन को जीरो करना। जैसे अर्जुन था ना, तो अर्जुन के पास में जैसे अब उसकी मोह वृत्ति जो उभर के आ गई थी सामने, युद्ध के टाइम में उसके हाथ जो है थरथराने लग गए थे, तो अब उसको शांत करने वाली जो स्टेज थी ना, उसको ध्यान की जरूरत थी। तो अब ये भगवान उसको कह रहे हैं, भगवान उसको यही वाली चीज़ सिखा रहे हैं कि एकाग्रता तो तू तब साधेगा ना जब तू पहले एकाग्र होने के लिए पहले तू अपने आप को काबिल तो बना ले। एकाग्र होने के लिए क्या काबिल बनाना पड़ेगा? मन को जीरो करना पड़ेगा। तो मन को जीरो करते ही फिर वो कृष्ण खुद स्वयं बन जाएगा। अब उसको कहाँ पर कंसंट्रेट करना है, तो वो जो है पूरी तरह से 100% कर सकता है ना, क्योंकि उसका माइंड इधर उधर भागेगा नहीं। तो ये अवस्था जो है परमात्मा की पहले ही आ जानी चाहिए। अब परंतु कह रहे हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप तथा सदा एक रस रहने वाले। अब एक रस कौन रह सकता है? एक रस जिसका मन अपने बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया। अब कंट्रोल में आने के बाद में अब उसका एक रस नित्य अचल हो गया ना, उसका मन अचलता में हो गया। अब उसका जो मन जो चलायमान होता था, अब निराकार क्या अवस्था हुई? जो मन में कोई भी प्रकार का आकार नहीं घूम रहा, वो निराकार अवस्था हो गई। अविनाशी कौन सी चीज़ हो गई? अविनाशी जो नाश होने वाला जो जगत था, वो तो उससे तो आपने फरकती ले ली पहले ही, वो जीरो ही करके बैठ गए। अब सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से, अब जो आपने जो खाली कर दिया ना अपने माइंड को पूरी तरह से, तो वो सच्चिदानंद घन अपने आप ही प्रवेश, जैसे आप एक तरफ खाली करते हो और दूसरी तरह से ब्रह्म का प्रवेश हो जाता है उसमें। ब्रह्म का प्रवेश क्या? शून्यता को कहा जाता है। मतलब कि आप जब चिंतन परमात्मा का, जब तुम संसार का चिंतन नहीं कर रहे, तब तुम परमात्मा का चिंतन में अपने आप आ गए। परमात्मा का चिंतन क्या हुआ? मौन हो गया। मौन अवस्था ही परमात्मा का चिंतन हुई। मन का मौन ही चिंतन हुआ। तो अब उसमें कह रहे हैं भजते हैं,
वे संपूर्ण भूतों के हित में रत। संपूर्ण भूतों का हित भी वही मनुष्य कर सकता है जिसके मन में भूतों की आकृति नहीं घूम रही हो, वो कर सकता है। सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब सब में समान भाव किस प्रकार से आ जाता है? जब मैंने मन को जीरो कर लिया तो तभी तो मैं उसको भी, जैसे दुर्योधन जैसे व्यक्ति को, चाहे वो मेरा अपना सगा संबंधी है या फिर भीष्म पिता में सामने खड़े हैं कुछ, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तब मैं उनके साथ में ठीक व्यवहार कर पाऊंगी ना। ठीक मतलब जो उस समय के लिए जो उचित व्यवहार है मैं वो कर पाऊंगी। उचित मतलब उस समय चाहे उनको मृत्यु के घाट उतारना है वो भी उचित है। अब सामने वाली ओपोजिशन वाली पार्टी में आप खड़े हुए हो तो जब मैं शून्य वाले मन पे हो जाऊंगी तभी तो मैं कर सकती हूँ ना, तभी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। तो वो अवस्था जो है योगी की अपने आप आ जाती है जब वो मन को जीरो कर लेता है। अब उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। अब कह रहे हैं कि इनके जो सच्चिदानंद घन मतलब चित्त की मतलब जो मतलब अंदर तक का जो डीप मतलब डेंस वाला जो कहते हैं ना, जैसे पुराने मतलब आप समझ लीजिए कि जब से स्टार्टिंग हुई है मैनिफेस्ट होने की, तो तब से हमारे मन के अंदर में स्मृतियाँ जो घर करी हुई हैं, तो चित्त का जो पार्ट होता है ना वो मन से भी गहरा होता है। मतलब उसमें जन्मों जन्मों की कहानियाँ जो हैं उसमें बसी हुई होती हैं। तो वो तक में भी जो है आपके बिल्कुल आपका जीरो कर लेते हो आप उस अवस्था में। तो उसमें कह रहे हैं कि आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। अब कह रहे हैं कि जो आसक्त है इस प्रकार से अपने चित्त के साथ में जो शुद्ध हो गया उसके लिए तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन जो आसक्त है अब उसके लिए साधन में जो है ना ये परिश्रम करना जो है उसको परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब जो देह अभिमानी मतलब जिनके अंदर शरीर भाव है, अब शरीर भाव पहले तो अपना ही होता है, अपने सबसे पहले अपना होता है ना। जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपना ही शरीर दिखाई देता है, तो जो मैं तत्व जो स्टार्ट होता है वो अपने शरीर के कारण ही तो होता है। तो अब वो अवस्था भी जो है ना वो जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है तब तक जो विचार शून्यता वाली जो अवस्था है वो आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो देह भाव जो है बिल्कुल जो जीरो जब तक नहीं हो जाता ना हमारा मतलब, तो तब तक जो है हम अव्यक्त मतलब जो बिल्कुल निर्विचार वाली जो स्टेट होती है वो हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सारे आकार जो है हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं। तो रिमेम्बरेंस बेसिकली हमें रिमेम्बरेंस भगवान की नहीं करनी, हमें जो फॉरगेट करना है, पूरे वर्ल्ड को फॉरगेट करना है। अब फॉरगेट कैसे होगा? जिसकी जो जगह है उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाए। जैसे जो मन में हमारे बसे हुए होते हैं ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो बस जो मटेरियल जगत है ना, जैसे मटेरियल जगत है तो मटेरियल जगत को मटेरियल की तरह से हमने मान लिया ना कि ये जो मटेरियल है जिनमें चेतनाओं का जन्म ही नहीं हुआ, तो उनको मन पर भी बैठा के करेंगे क्या? तो इस प्रकार से मटेरियल जगत को मटेरियल ही जान लिया और मैं जो है कॉन्शियसनेस हूँ। तो उस अवस्था में जब तक आप आओगे नहीं तो ये देह अभिमान भी जो है जल्दी से छूटता नहीं है। तो देह अभिमान जब तक नहीं जाएगा तो तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। जी हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सोनपाल जी अब आप स्टार्ट कीजिए बोलना। आज थोड़ा मन मेरा इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मैंने कोशिश किया अच्छे से सुनने का, क्योंकि नीचे घर से आवाज आ रही थी पापा की और माधवी की। अच्छा यहाँ पे चलो वो भी अच्छा है। तो नाम रूप जो है वो हमारे एकाग्रचित होने में दिक्कत आई थी आपको, है ना? हाँ। तो आज नाम रूप जो है वो कानों से हमारे शरीर के भीतर जाता है और रूप जो है वो आंखों से जाता है। और जो भी कानों से और आंखों से जाता है, जो हम देख सकते हैं अपने चर्म चक्षु से, वह अनित्य है, वो शाश्वत नहीं है। जो दिखता है वो चला जाएगा, वो टिकता नहीं है। टिकने वाला तो वही आपका शून्य स्थिति है, मौन स्थिति है। तो कल इस्कॉन के सत्संग में प्रहलाद जी का उदाहरण दिया गया था। वहां पे बोले कि हिरण्यकशिपु
दिति का लड़का है, कश्यप ऋषि का, उसके बाद बहुत ताकत है, उसने तीनों लोक अपनी मुट्ठी में कर लिए हैं, इंद्र भी परेशान है। और इतनी ताकत वाला वो आदमी जिसने भगवान से अमृतत्व की प्राप्ति के लिए वरदान मांगा था, लेकिन भगवान ने बोला कि मैं अमृतत्व सीधे सीधे नहीं दे सकता, तो उसने फिर रात को नहीं, दिन को नहीं, सजीव नहीं, निर्जीव नहीं, वो सब वाला उसने वरदान मांगा। ऐसे हिरण्य कशिपु के सामने 5 साल का बच्चा प्रहलाद, उसके पास ऐसा कौन सा चीज था कि करुणा से पूरा भरा था, भय तो उसके पास था ही नहीं। जो पिताजी उसको विष्णु का नाम लेने से मना कर रहे थे, वो चिंतित था कि मेरे पिताजी कब विष्णु का शरण लेंगे। वो जब नरसी प्रकट होते हैं तो नरसी से भी यही वरदान मांगते हैं कि मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दें। तो नरसी ने तो बताया कि भाई मैंने उसको टच किया ना, तब से ही वो तो मुक्त हो गया है। तो प्रहलाद के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको इतना निर्भय बना देती है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पास जो चीज थी वो थी टोटल सरेंडर, 100% शरणागति। जो भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। ये सब जो ब्रह्म वाक्य हम सुनते हैं वो अनुभव में जब आने लगते हैं ना, तब वो उसकी झलक दिखाई देती है। तो वो 100% शरणागति तभी आएगी जब हम शून्यता में प्रवेश करेंगे, मौन में प्रवेश करेंगे। अभी 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 गणेश फेस्टिवल गया और श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो गणेश फेस्टिवल में भी मैं सोचता हूँ कि केवल 1.5 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए लाखों रुपये का मूर्ति का खर्चा करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। तो ये विसर्जन में ही पूरे गणेशोत्सव का सार तत्व है, क्योंकि जो मूर्ति है वो विसर्जित होने वाली है। मूर्ति पूजा से अमूर्त में जाने का है। विसर्जन किया इसका मतलब क्या हुआ कि वो मूर्ति 5 तत्व में विलीन हो गई, आकाश, पानी, अग्नि, वायु और पृथ्वी। तो वो 5 तत्वों में वो अभी दिखती नहीं है, लेकिन वो समा गई है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये मूर्ति पूजा यानी आप साकार को पूजो या निराकार को पूजो, दोनों एक ही है। और ये वेद का एक वाक्य है कि सा एकाकी न रमते, भगवान को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है। सा द्वितीय इच्छित, इसलिए वो दूसरा इच्छा करता है और वो सृष्टि बनाता है ब्रह्मा के जरिए। तो वही है कि हमें निर्विचार स्थिति में रहना है। देखो महाभारत के युद्ध में अर्जुन था, वो विचारवान था, बहुत विचार आ रहे थे कि सामने मेरे पितामह है, द्रोण है, ये है। भीम था, वो विचारहीन अवस्था में था। और विचारवान और विचारहीन की जगह एक तीसरी अवस्था है, निर्विचार। कृष्ण निर्विचार की भूमिका में थे, वहां पे कोई किसी चीज का अवकाश ही नहीं था, बस बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, इस पल में रहना। जैसे हम समुद्र किनारे जाते हैं और हम बैठते हैं वहां पे, मान लो वो समंदर में लहरें नहीं उठती है तो हमें अच्छा लगेगा? ज्वार भाटा जो है, लहरें हैं, उसी से समुद्र का सौंदर्य बनता है। तो हम जो है वो ईश्वर की लहरें हैं, हमारी लहरों से ही उसका अस्तित्व अभिव्यक्ति में आता है। तो वो लहरें का भी अपना वजूद अपनी जगह पे है, लेकिन उसका अस्तित्व बहुत कम समय के लिए है। समुद्र तो था, है और रहेगा। लहरें उत्पन्न होती है, थोड़े क्षण के लिए टिकती है और फिर विलीन हो जाती है। तो थोड़े समय के लिए लहर को ऐसा लगता है कि मैं हूं, लेकिन देखने वाला है ना समुद्र का नजारा, उसको तो बिना लहर से समुद्र अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हम ईश्वर की अभिव्यक्ति है और ईश्वर हमारा अस्तित्व का कारण है। जैसे लय और प्रलय, श्वास और उच्छ्वास, निमेष और उन्मेष, संकल्प और विकल्प एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज सांस लिया तो तुरंत उसको छोड़ना पड़ेगा, पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो श्वास लेना जिंदगी है, श्वास छोड़ना मृत्यु है। लेकिन एक दिन इतनी लंबी छोड़ देते हैं कि वापस लेते ही नहीं है, उसको हम बड़ा मृत्यु समझते हैं। तो हर पल मृत्यु का एहसास करना जरूरी है
और उसके लिए शून्य में ही जाना है, मौन में ही जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो रास्ता है केवल सत्संग और किसी महापुरुष का शरण। महापुरुष के शरण में जाने में थोड़ी दिक्कतें ये आती है कि उसको भी भूख लगती है, उसको भी कपड़ा पहनना पड़ता है, उसको भी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो फिर हम उसके अंदर ऐब ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उस तत्व को देखें, उसके शरीर को, शरीर का तो धर्म है, शरीर को जो चाहिए उसको देना है। शरीर को भूख लगता है तो खाना दो, शरीर को दूसरे शरीर का भूख लगता है तो उसको दूसरा शरीर दो, शरीर प्यासा रहना चाहता है तो उसे प्यासे रहने दो। शरीर की जो मांग है वो पूरी करके शरीर के धरातल से उठ जाना है और हमें हमारे बीइंग में रहना है। शायद यही चीज आज भगवान 12वें अध्याय में ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, बहुत ही सुंदर बोला है। वो जो लहर का जो बोला ना आपने, बहुत ही सुंदर बोला है। और दूसरा मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जैसे ये जो जागृति वाली भी जो स्टेज होती है ना, अब पंच तत्वों से जो बनी हुई है जो चीज़, तो उसमें क्या होता है कि पंच तत्वों को भी आप को कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर शांत रहना है रिवर की तरह, कहाँ पर जो है उछल कूद मचानी है। जैसे 24 घंटे जो जैसे विचार आए, उछल कूद चल रही है। एक विचार वाली अवस्था तो रहनी बहुत अच्छी बात है। एक अविचार वाली जो अवस्था है उसमें तो पशु जगत होता है। एक विचार अवस्था, लेकिन विचार में ज्वार भाटा वाली जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी समय अर्जुन की जो अवस्था है वो ज्वार भाटा वाली अवस्था चल रही है अभी समय। तो अब ज्वार भाटा वाली अवस्था को पहले जो है वो मतलब होता है कि विचारों को ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं करा जा रहा। ज्वार भाटा इस तरीके से होता है। अब उसको ज्वार भाटा से बिल्कुल नॉर्मल वाली स्टेज में आना है। तो इसमें जैसे अब मैं प्रकृति की पावर्स को जब इस्तेमाल करती हूँ तो उसमें मेरे को कितनी देर जैसे सांस आती जाती है उतनी देर तक भी चीज़ को नहीं रखना अपने माइंड में। बाहर की सिचुएशन मेरे ऊपर इतनी हावी ना हो जाए कि वो मेरे माइंड में स्टे कर जाए। मतलब वो सांस की तरह ही मैं छोड़ दूं और सांस की तरह से ही ले लूं। इस तरीके से मेरा जीना होना चाहिए, लाइफस्टाइल मेरा इस तरीके से होना चाहिए। मैं मतलब इस तरीके से मैं समझती हूँ इसको। जी, अब इसको बोलेंगी हर्षा जी। हर्षा जी आप बताइए। मुझे ये जैसे आपने कहा ना कि जैसे बोलते ना कि शून्य अवस्था में, तो जब हम लोग गुरु के शरण में जाते हैं तो जब गुरु अपना देह छोड़ता है तो जब शर्विंदो ने अपना देह छोड़ा तो कई जन बहुत निराश हो गए और बोलते थे कि हम लोग जैसे अभी एकदम असहाय हो गए, सपोर्ट चला गया हम लोग का। तो तब मदर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो परम तत्व होते हैं वो तो कभी फॉर्मलेस, उनका अंदर तत्व चलता ही नहीं है, वो तो इटर्नल, या इटर्नल रेवलेशंस दे कम एंड गो, बट सब्सटेंस तो जैसे आप बोलते हैं ना कि एक ही है, इटर्नल। तो हम लोग जब तक गुरु को देह इतिहास में रहेंगे ना तो हमें तब ठीक ठाक वो होएगा कि दूर रहते हैं आश्रम से या गुरु से दूर रहते हैं तो हमको अतृप्त लगता है, हमें लगता है कि नहीं हमारे तो वहीं रहना अच्छा होता है। ऐसा सब विचार भी बहुत आते हैं और कई साधक लोग जो उधर रहते थे उनको थोड़ा डिसल्यूजन हो जाते थे क्योंकि डीप गए नहीं उन लोग। और ये तो एक्सपेरिमेंट ही है, लाइफ पूरा जैसे बोलते हैं ना कि लेबोरेटरी है। तो यहाँ में तो सब अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, सब होंगे, जैसे संसार है यहाँ में भी है। तो यदि हम डीप नहीं रहेंगे ना तो हम बाहर के हलचल में फंस जाएंगे। तो ये जो मनीष जी ने कहा ना कि बीइंग, तो मेरे को भी पौंडीचेरी जाते हुए 3 साल हो गया, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि माँ तो मेरे पास ही है और मैं याद करूँ तो मेरे अंदर प्रकट हो जाती है। जाना अलग जरूर, समाधि के पास बैठना, उसका वाइब्रेशन लेना, तो वो शरीर और फिजिकल माइंड बॉडी का वाइब्रेशन हो जाता है। जब आप एकांत में बैठते हो तो आपको जरूर एहसास होता है वो शून्यता का जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और वो एक अलग ही डायमेंशन हो जाता है। तो वो डायमेंशन यदि हम टच करते जाए हर रोज तो मुझे लगता है कि एक अलग ही एनर्जी जो आप बोलते हैं ना शून्यता से क्रिएटिविटी बनती है, वो शून्यता की अब एहसास होने लगती है फिर।
कहीं पर भी जाने आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आना जाने की जरूरत नहीं आना है। जाना और वहां जाकर भी हम क्या वैल्यू क्रिएट करते, यदि हमारा घर संसार में पड़ा है तो। हाँ, जंगल में भी मन तो साथ ही चलता है। तो जब आप किधर भी जाओ, यदि आपका मन के अंदर डेप्थ नहीं आया होगा, तो आप कहाँ भी जाओ, कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाओ, आप उसका पूर्णता से लाभ नहीं ले सकोगे। हाँ, उसका बस ये उसका यही तरीका है कि अपने आप को मरे जैसे समझ लो बस। मैं तो घर से भी बाहर निकलती हूँ ना आशा जी, मतलब ये समझ लेती हूँ मैं तो हूँ ही नहीं दुनिया में, बस पीछे जो छोड़ा ही बस छोड़ा। नहीं नहीं, बाहर जाओ, सब मौज लो। पर मैं क्या बोलती हूँ कि जैसे हम लोग स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अभी दर्शन दिन आते हैं, तो सब लोग बोलते कि आप कितना टाइम हो गया, आप नहीं, आपको नहीं होता है कि आप मदर के टच से दूर हो रहे हो। मैं बोलती, मैं मदर के टच से दैट से करीब हो रही हूँ, क्योंकि मैं अंतर्मुखी सदा सुखी। सबसे बेस्ट है। नहीं जा सकते तो फिर रोएंगे थोड़ी ना हम। हम इधर ही अपना वैल्यू क्रिएट करेंगे, जहाँ हम है, जिधर है, जिस जगह में है, उसको ही हम भगवान का घर बनाएंगे ना, है ना। रमन महर्षि बोला करते थे कि उनके आश्रम में जो लोग आते थे ना, तो वो कहते थे कि तुमने कहीं ट्रैवल किया क्या? तो वो कह रहे तुम्हारा शरीर गया, मन गया, तो लेकिन तुमने कभी ट्रैवल किया? तुम तो जहाँ थे वहीं हो, तो उसमें तुम तो कहीं आएगा ही नहीं। जो कार थी वो कार ने ट्रैवल करा, कार अपना उठ के वहाँ आ गई, वहाँ चली गई, लेकिन तुमने थोड़ी ना ट्रैवल करा है। तो वही चीज़ जो है, ऐसे वाली अवस्था जो है ना लगने लगती है। और वैसे भी शरीर को तो आपका कितने दिन आप चले जाओगे, कितने दिन फिर लोगे? एक टाइम पे तो शरीर भी जवाब देगा ही ना। तो उस समय जब शरीर जवाब दे और तब तुमने अपनी थकान मानी, उससे पहले ही सीख लो। उससे पहले ही जब अवेकनिंग आ जाती है तो उसमें कहीं जाना आने वाली मैटर ही नहीं रह जाता किसी भी तरीके का। तो वही है कि जहाँ पर हो आप पूरी तरह से पूर्णतया होकर जी रहे हो, बस जो भी आपका मतलब संसार जगत है या जहाँ पर भी रह रहे हो, तो वही सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से तो। हाँ जी, अनामिका जी आप बताइए। हाँ जी, सही है। अब तो कुछ ऐसा बोलने के लिए है नहीं, मतलब मेरे को भी वही लगता है कि जो सगुण भक्ति होती है वो पूरे सरेंडर भाव से होती है, मतलब शून्य भाव से। हम बार बार अपने संसार को ही बीच में लाते रहते हैं, मतलब भगवान पे, मतलब अभी मैं मेरे स्टेज का बोल रही हूँ, मतलब एक जो ट्रस्ट आना चाहिए, मतलब कि उनसे अभी तक, मतलब मैं भी पूजा करती हूँ कभी कभी, तो मेरा वही चलता है कि प्रभु ये चीज ठीक कर देना, है ना। लेकिन वो एक फिर भी भगवान को पता है वो, मतलब वो चीज में, मतलब ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए, मतलब एक तरह से शून्य मन, पूरा एकदम प्रेम भक्ति, मतलब जो भी होगा उससे मतलब कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपेक्षाएं बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है अभी। अपने आप से भी कई बार हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपने आप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो चीज जैसे परफेक्शन जो है हमारे करे के हिसाब से परफेक्शन हो जाए। हाँ, हम अपने आप को ही लेके आते हैं बार बार, हम कहते हैं हमारे हिसाब से परफेक्शन हो जाए। अब कहते हैं इम्परफेक्शन में क्यों नहीं जी सकते? बाहरी सारी सिचुएशन इम्परफेक्ट है, लेकिन मैं तो परफेक्ट हूँ ना। हाँ, मैं तो परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, वो बार बार, मतलब सरिता जी, क्योंकि हम लोग अभी संसार में रहते हैं तो बार बार ही जुड़ते हैं ना, तो वहीं पे उसमें विचार शून्य अवस्था ऐसे आती है कि हम लोग जुड़ जाते हैं, फिर रियलाइज करते हैं, फिर विचार शून्य, फिर हाथ छोड़ दिया। नहीं, मैं मतलब एक ये वो चाह जो रही हूँ कि जैसे इम्परफेक्ट वाली जो स्टेट है, सपोज करो कि बाहरी स्थिति, कोई घर में बीमार भी चल रहा है, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, बाहर का सब कुछ अस्त व्यवस्थ तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन आप तो परफेक्ट है ना। ऐसा रह सकते हैं, परफेक्ट रह सकते हैं। नहीं, मैं परफेक्ट फिर कैसे हो जाऊंगी? यही हो जाता है ना, मतलब मोना जी, मुझे लगता है मोना और मैं सेम स्टेज पे ही चलते हैं। अभी मैं एक कहानी पढ़ रही थी कल, क्या सरिता जी, तो उसमें एक लकड़हारा रहता है, वो एक बहुत बारिश हो रही थी, पूरा पानी बह रहा था, उसके सर पे गट्ठर रखा था और ये अकबर बिरबल वहां खड़े हुए थे। तो वो फटाक से उसने उसको, जो नाले जैसा बह रहा था, पूरा पानी से भरा था, पार किया। तो अकबर आश्चर्य में आ गए, उन्होंने बोला कि तुम एक और बार ऐसा करो, मैं तुम्हें मुद्राएं दूंगा, 100 मुद्राएं। तो जब वो वापिस करने लगा तो वो फिसल के गिर गया। तो बिरबल ने हंसकर बोला कि अब उसके ऊपर बोले फल आपने जोड़ दिया, कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको ये फल मिलेगा। तो बोले वो फिसल के गिर गया।
पर जहाँ पूरे पल से जुड़े। मतलब वो आपका वो नहीं रह गया ना, आनंद नहीं रह गया ना, आनंद से नहीं। आनंद नहीं रहेगा, मतलब पहले उसने वो काम इजीली कर लिया था, लेकिन जहाँ फल आया। हाँ तो वो तो तो उसमें भी थी ना, ये वाली एक अकबर की स्टोरी ये भी थी ना, जब वो हरिदास पे गए थे ना दिखाने के लिए, वो तानसेन को लेके गए कि तुम अपने गुरु से मिलवाओ, तुम इतना अच्छा गाते हो। तो तानसेन को जब तानसेन ने कहा कि वो तो जो है अपने उसके लिए, ईश्वर के लिए गाते हैं, वो वैसे नहीं गाते हैं। तो तब वो उनको मॉर्निंग के टाइम में उनसे मिलवाया, मतलब मिलवाया क्या, दूर बैठे देखा कि हरिदास जी गा रहे हैं भगवान के लिए। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे जो गुरु हैं इतना सुंदर कैसे गा पाते हैं, तुम क्यों नहीं गा पाते ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए गाता हूँ और उन्हें कुछ प्राप्त हो चुका है तो इसलिए गाते हैं। तो इतना डिफरेंस है। तो वही है ना चीज़, जब तक आप आनंद में, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब हम लोग जो भी एज ग्रुप से जो भी गुजर रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, घर की भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, बच्चे भी कई बार अच्छा नहीं कर रहे होते, या फिर मतलब वाद विवाद किसी से भी सपोज करो ऐसा हो जाता है। लेकिन वैसी स्थिति में भी कभी अपने आप को चेक करा है कि हम उस समय भी हम ठीक होते हैं? ऐसी ऐसी मन की स्थिति देखी है कभी? हाँ देखिए। देखी है ना। हाँ तो वो परफेक्ट आई होता है ना वो। मेरे साथ क्या होता है, जब मैं किसी को दूसरे को मतलब सामने वाले व्यक्ति को अभी मतलब वैसे ही देख रही हूँ ना, मैं दूसरा समझ के ही देख रही हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत उथल पुथल होता है सरिता जी, थोड़ा टाइम लगता है मुझे उस चीज में नॉर्मलाइज होने में। हाँ तो लेकिन ये नहीं होता ना कि जैसे सिचुएशन ठीक हुई है तब मैं ठीक हुई, ऐसा भी होता है कि सिचुएशन ठीक होने पे ही ठीक होंगी मैं, और क्या पता सिचुएशन नहीं। ठीक ही ना हो। नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक तो हो जाती हूँ, ठीक हो भलाई जाता है टाइम ना। टेकिंग है। हाँ तो वो हो जाता है ना। हाँ तो ठीक है बिल्कुल। हाँ मोना तुम बोलो आप अपना। नहीं, मेरे तो वो होता है जैसे सिचुएशन खराब है ना, कोई भी जिनसे हमारा संबंध है उन्हीं से ही मतलब हम वो होते हैं ना विचलित। अगर कोई मतलब सिचुएशन खराब है, हो रहा है, तो मेरे को तो वही लगता है कि भगवान है, वो अपने आप करेंगे। मतलब एक अंदर विश्वास है अभी भी, मतलब जैसे एक नहीं कुछ नहीं, मतलब एक मन में बस वही रहता है, भी अपने आप देखेंगे वो, मतलब द्रौपदी की तरह हाथ खड़े कर रखे, अपने आप देखेंगे, अपने आप संभाल लेंगे। मेरे तो मन में ऐसे आ जाता है जब सिचुएशन खराब होती है। हाँ तो ठीक है, ये भी बिल्कुल भक्ति वाली अवस्था है। और ये आज का उसमें तो वही है, भगवान ने बोला भी जो मन से वो मेरे में रहता है, तो मतलब सारा कुछ फिर मैं देखता हूँ। एकाग्र करके ना, ये वो था ना, हाँ मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में। तो भजना हाँ वह हो गया ना, जिस भजना उस अवस्था उसको कहा जाता है। जैसे सांस सांस में आपका क्या चल रहा है, सांस लेते छोड़ते में आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसको भजना हुआ ना। भगवान ही चलते हैं, सांस जैसे में तो भगवान ही चलते हैं। आप भारी तौर पे कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन अंदर मानसिक परेशानी वाली चीज चल रही है या नहीं चल रही है? हाँ, मानसिक परेशानी चल रही होती है ना। नहीं आपने एक बार तुम्हारी बोला था जो मोना, तुम्हारी स्थिति जो चलती है ना, तुम्हारी स्थिति ऐसी चलती है कि आप सांस में लेते हुए में भी आपके माइंड में वो चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वो प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो प्रॉब्लम जो चल रही है तो वो प्रॉब्लम जो चल रही है ना, तो वो भजना हुआ ना, वो भजना नहीं हुआ ना। हाँ भजना किसको मैं भजना समझ हुआ? गई, आपकी बात समझ गई। हाँ वही मतलब भजना हुआ ना, वो भजना तो वही हुआ जो परमात्मा के उसमें रंग में रंगे है, मतलब उसी में। मतलब यदि तुमने सरेंडर कर दिया होता तो वो उस समय Surrender, में हाँ। सांस में वो चीज नहीं चल रही होती। वो तो प्रॉब्लम जो चल रही है, मतलब वो हर वक्त जैसे कहते हैं ना, वो एक मतलब बीमारी जैसे दर्द ही दवा बन गई ना, तो बस वो दर्द ऐसा वाला हद तक का हो जाता है कि दवा बन गया। तो वो दर्द तो चल रहा है, दर्द वाली जो स्थिति जो चल रही होती है वो। हाँ चलो, इसको सोनपाल जी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी सोनपाल जी आप बताइए। मोना जी के लिए कहानी याद आ गई मुझे जी एक गांव में बहुत पानी आ गया है बारिश का, तो थोड़े
टीले के ऊपर एक संत का आश्रम था, गांव लोग खाली कर रहे थे, तो संत को भी बोला कि खाली कर दो, अभी बहुत रिस्क है। तो नहीं, बोले मैं पूरा जिंदगी भगवान का शरण लिया है, मेरा तो जो करेगा ठाकुर जी करेगा। तो फिर लास्ट में है ना, मिलिट्री वालों की बोट निकली कि चलो सब खाली हो गए हैं, अभी स्वामी जी आप ही बचे हो, आप बोट में बैठ जाओ तो जिंदगी बच जाएगी। अरे मेरा ठाकुर जी मेरा ध्यान रखेगा। फिर बोट वाले भी नहीं आ सके, उतना पानी बढ़ने लगा, तो हेलीकॉप्टर वाले निकले, उन्होंने टीला थोड़ा बचा हुआ देखा, स्वामी जी खड़े थे, तो बोले आ जाओ स्वामी जी, हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां निकालता हूँ, अब रस्सी उसके ऊपर चढ़ जाना है आपको। तो बोले नहीं, मेरा तो ठाकुर जी आएगा, मेरी रक्षा करेगा। और फिर हेलीकॉप्टर भी चला गया और स्वामी जी टीले के साथ वो पूर्व में राम शरण हो गए। राम शरण होने के बाद भगवान के पास गए तो बहुत गुस्से में थे कि पूरा जिंदगी मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, पूजा पाठ किया, तुम्हारी शरण पकड़ के रखी और मेरे को डुबा दिया तुमने, मेरी नैया को तैराया नहीं, सब गांव वाले चले गए, मैं तेरे भरोसे बैठा था। तो भगवान जी बोले बेटा तू मेरा प्यारा बच्चा था ना, इसलिए पहले मैं गांव वाला बन के आया तुमको बताने, तू सुना नहीं, फिर बोट लेके आया था, मैं ही आया था, तू बैठा नहीं, फिर लास्ट में तेरे लिए मैं हेलीकॉप्टर लेके आया तो भी तू बैठा नहीं। तो ये राम भरोसा वाला शब्द है ना, वो दुधारी तलवार का है, उसको कर्म के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ना है कि हम भी अपने कर्मों के रास्ते से पीछे ना हटे और उसका शरण भी 100% ले। यानी कभी कभी कुछ न करना करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ न करना सचमुच में नुकसानदायी भी हो जाता है। तो वो आंतरिक विवेक तो आपको ही उठाना है, जो स्टेप है ना वो भगवान नहीं उठाएगा, वो आपको ही उठाना है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कुछ करना है, कब कुछ नहीं करना है। वो अंदर का जो विवेक है वही वो सब संभालता है। और विवेक आएगा सत्संग से, शरणागति से और समझ से। समझ के लिए सत्संग है, वो करते रहना है, और ईश्वर की कृपा तो सबसे बड़ी चीज है। वो भी जो अभी इसमें आज के उसमें बताया है ना, ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो वो सगुण भक्ति का भी मतलब यही होता है। सारे सभी में ही सारा जगत जो है वो एक ही शक्ति से ही तो चल रहा है ना सारा। तो अब कौन आ गया सामने, तो वो आया तो वही हर किसी में। इवन जहाँ जो लोग हमें प्रॉब्लम देते हैं तो आता तो वही है ना, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से हमें पार नहीं करना आता। तो जब तक हम वो लेसन सीखेंगे नहीं तो वो प्रॉब्लम तो आती रहेगी ना हमारे पास में, करंट में कंटिन्यूसली आती रहेगी वो, क्योंकि उससे पार जाना अभी हमने सीखा नहीं है। सारे ही तो सामधान वेद सारा तो यूज करना पड़ेगा आपको। जी सोनपाल जी क्या कह रहे हैं? और वो लेसन भी है ना, हमारे परिवार वाले ही हमें सिखाते हैं, जिसके साथ हम ज्यादा रहते हैं ना, जिसके साथ हमारा ज्यादा दिन निकलता है वो हमारे बहुत करीब रहते हैं। और करीब होने से क्या है, हम एक दूसरे के ऐब के बहुत अच्छे से जानकारी रखने वाले हो जाते हैं, और जानकारी रखने के साथ उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है ना, तो प्यार अपने आप बढ़ता है। और वो शून्यता के साथ ही आएगा। आप 0 लेवल पे जाओगे तो ही अपने प्रियजन को उनकी लिमिटेशंस के साथ हम स्वीकार कर सकेंगे। क्योंकि अभी कल ही मेरी बेटी का ही लेक्चर रखा था मैंने सीनियर सिटीजन में, तो वो बोलती है कि बहुत सारी ऐसी चीज मम्मी पापा बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनके सामने होकर भी वो चीज करती हूँ, और फिर नुकसान होता है। तब मुझे अंदर से पता लगता है कि मम्मी पापा ने सही किया था, लेकिन मैं करा नहीं। लेकिन हमें गलतियां करने की आजादी चाहिए। हम गलतियां करके सीखेंगे ना तो हमारे लिए लेसन बहुत पक्का मिलेगा हमको। तो हम इतना चाहते हैं कि आप हमें गलतियां करने का आजादी दे। तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से हम सबको समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गलतियां करने की आजादी रहनी चाहिए। और जो चीज गलती से सीखते हैं ना, इतना अच्छा सीखना कहीं से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है।
बिल्कुल ही ठीक बात है जी। और कौन बोलना चाहता है? हाँ जी, अनामिका जी कुछ बोलेंगी? नहीं सरिता जी, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। अच्छा चलो ठीक है। तो सोमपाल जी ने सारे वो दूर कर दिए अभी जो उन्होंने दिया ना, एग्जाम्पल जो दिया, बस जो दिए जो स्टोरी बोला, जो सुनाई है ना वो भी बहुत सुंदर सुनाई है। बिल्कुल सही हो। एक्चुअली क्या है, चक्षु तो सारे टाइम हमें खुले खुले ही रखने पड़ते हैं। हम खुद ही तो जंगा देते हैं ना। हर इंसान की एक अंदर ना मन में हमारी एक स्पेस होती है, तो वो हमें किसको कितनी देनी है ना, तो वो चीज़ का भी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे किसी भी मनुष्य की स्पेस भी हमने यदि ज़्यादा दे दी ना, तो वो भी जो है मतलब जैसे उस पावर का मिसयूज़ करने लग जाता है। तो वो लेकिन वो बेवकूफ़ी हमारी खुद की होती है करी हुई। तो बस किसको कितने अंदर तक हमको लेना है, कितनी देर तक हमें टिकाए रखना है अंदर उसको। तो तब तक जब तक हमें ये डीलिंग नहीं आती ना संसार से करने की, तो हम बार बार परेशानी होते हैं भारी तौर के बिहेवियर से। लेकिन जब ये चीज़ आ जाती है ना हमें, जब जागृति वाली जो स्टेज आ जाती है हमारी, तो जागृत में तो फिर क्या हो जाता है, जब सब कुछ ही दिखता है ना हमको कि कौन से वाले लेवल से बोल रहा है, किसको कितनी जो है स्पेस मुझे देनी है या वैल्यू करनी है किसी की कितनी। तो ये सब जब तक चीज़ें सामदंड भेद सारे हमें आते नहीं ना, तो तब तक ये आवागमन जो है ना चलता ही रहता है बस। हाँ जी, ये बिल्कुल है ना नामिका जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल। और ये वाला जो सेशन है ना, हमको वही चीज मतलब अच्छे से मतलब हम लोग एक वो सीख रहे, मतलब सीख गए हैं। मतलब इस सेशन का बहुत फायदा मिलता है। अब क्या होता है ना, जैसे इसमें अभी तो फिलहाल किसी का जैसे वैसा वाला पॉइंट नहीं है कि जैसे किसी की कहीं ईगो खड़ी हो जाती हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ईगो ही खड़ी हो जाती है, किसी को ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया तो उसमें किसी दूसरे को हर्ट वाली फीलिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ों में भी क्या है, जब तक जो स्मॉल आई जब तक हमारी बची है, तो उस पर काम करने की तो ज़रूरत है ही। जो भी बुरा लगता है हमें, अच्छा लगता है जगत में, तो वो उसमें क्या होता है ना, जैसे हम पूरी तरह से खेल नहीं पाते, पूरे आनंद से नहीं जी पाते। तो वही चीज़ है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो जो चैरिटी भी क्या है कि जैसे अपने आप का इस प्रकार की चतुराई से इंसान को जीवन में चलना चाहिए कि मतलब कहीं पर भी वो जाके फंसे नहीं। बस यही चीज़ है। बस अपना जैसे कोई सामने वाला मनुष्य ज़्यादा अति पे उतर आया है, तो उससे कैसे अपना पीछा छुटाना है और कहाँ पर किसको कितना जो है टाइम देना है, कितना नहीं देना। तो इसमें पूरी तरह से मेरे पास में मतलब पूरा जैसे एक प्लान बना हुआ होता है ना मेरे अपने माइंड में। तो जैसे भी कोई भी पर्सन मेरे सामने आया है, तो उस समय में वो माइंड का जो मैप है ना, उस तरीके से वो मतलब एक्टिव हो जाना चाहिए कि बस अब इसको जो है बहुत दूर तक नहीं लेके जाना, या इसको यहीं छोड़ देना है। अब ये मनुष्य है तो इसको मेरे को ज़्यादा इसका ज़रा मेरे को चीज़ ज़्यादा ध्यान से सुननी है। तो इस प्रकार से जो वो होता है ना, वो इंस्टेंट ही करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। और ये ऐसा भी नहीं होता कि हमें कई बार तो सोचने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन ये जैसे हमारी एक चतुराई है ना, वो इतनी चक्षु इतने ज़बरदस्त खुल जाते हैं कि उसमें फिर मैटर नहीं करती, स्पॉन्टेनियसली जैसे हम लोग कर पाते हैं डील। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए, फिर ख़त्म करेंगे सेशन को। आप सब इतना, हमको तो मनीष जी का स्टोरी बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पौंडीचेरी में पढ़ते थे, यही स्टोरी मदर का ही लिखा हुआ एक था कि एक एलिफेंट वो माहौत बैठा था और सामने एक आदमी खड़ा गया, तो बोला कि आप जाओ यहाँ से, क्योंकि एलिफेंट तो आपको धक्का मारेगा। तो बोलता है नहीं, भगवान हमारे अंदर बोलता है कि वो एलिफेंट रुक जाएगा। तो बोला नहीं वो एलिफेंट आप भगवान का नहीं समझ सकेगा, आप प्लीज निकलिए यहाँ से। तो वो निकला नहीं और वो एलिफेंट ने उसको धक्का मारा। तो यही तो चीज होता है कि अपना विजडम जो होता है ना, हम लोग जब बोलते हैं ना कि राम चरण में हम लोग जैसे राम का जो भी करेंगे, मनीष भाई ने जो बहुत अच्छा बोला था वो, तो ये जो हम लोग सरेंडर समर्पण करते हैं भगवान को, वो एक अंधश्रद्धा से होने से वो कभी हमको फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी सिंसियर टू बी ट्रूली सरेंडर, तब उसका कुछ काम बनता है। बिल्कुल, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा बस। बहुत और बहुत
सुंदर स्टोरी सुनाते हैं सोनपाल जी, मजा यस, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो स्टोरी सुनना, इतना अच्छा लगता है। बचपन की एक आदत वापस जागृत हो गई। नहीं नहीं, ये और फ्रेश हो जाता है माइंड बिल्कुल ना। हाँ, समझ में आ जाता है सब। बहुत ही एक्चुअली क्लैरिफिकेशन आता ही इसी से ही है ज़्यादा, स्टोरीज से ना। ओशो तो बार बार स्टोरी सुना सुना के उन्होंने इतना अपने, उनके सारे डिस्कोर्स जो थे, कितनी स्टोरीज उन्होंने सुनाई और कितने लाख जो है बुक्स उन्होंने खुद पढ़ी थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे लगता है एक्सप्लेन करने के हिसाब से बिल्कुल चारों तरफ में ना कुछ मतलब जमा नहीं रह जाता, बिल्कुल सब चक्षु पूरी तरह से खुल जाते हैं जी। चलिए खत्म करते हैं, अब आज का सेशन खत्म करते हैं, कल फिर बुद्धावाणी करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री